Hello everyone. Today I'm there in front of you so as to discuss on the topic that is the animal tissue and regarding the plant tissue we have already completed. Now in this picture you are able to see a chart which is of animal tissue, and in this chart you are able to see the types of tissue. This is the epithelial, this one is the connective, muscular, fourth one is the nervous. Among these four, the epithelial tissue is then again divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. Okay, and now when we are going to talk about the connective tissue, I'll give you the little introduction of this one. Epithelial basically is a type of tissue which is going to make the linings of the body. It may be external lining, it may be internal lining of your internal organs. Okay. And when we are going to talk about the connective tissue, as the name itself indicates, it is going to establish the connection in between two or more than two tissues. That is the reason it is known as the connective tissue. And in this category of connective tissue, there are areolar, adipose, skeletal, and fluid. Okay. Areolar basically is again of two types: tendon, ligament, and adipose tissue is there. Then skeleton is having the two category, that is a bone and a cartilage. And then when we are going to talk about the fluid basically means the sort of liquid substance. And liquid substance which we are having in our body is a blood or lymph. Okay, so next category is of muscular tissue. Muscular tissue basically means a sort of tissue which is present in our muscles. Muscles are basically of different type, like straightened muscles, unstraightened muscles. Okay, so some are there in your control, some are not there in your control. That we will be learning in a later stage. Now next one is the nervous tissue. In this category you must be knowing about the nerve cells. Okay, so nerve cells will be there in the nervous tissue. This is the sort of small summary of the animal tissue, and we will be moving one by one in a detail. So let's start now. So this is the introductory part of the tissue, animal tissue. So the animal cells are basically grouped together to form animal tissue. तो जब एनिमल सेल्स एक साथ ग्रुप बनाते हैं तो उस टिश्यू को क्या कहा जाता है? एनिमल टिश्यूज. और दीज टिश्यू वेरी इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन. ये जो टिश्यूज होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपने चार्ट में भी देखा. सो देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन और उनका ओरिजिन ये सब अलग अलग होता है. ठीक है. द एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू four basic divisions, that is epithelial, connective, muscular, nervous. So first thing which you are supposed to do is to learn the entire chart of animal tissue the way you have done with the plant tissue. Okay, now let us have a glimpse of each type of animal tissue in detail. Now this was the introductory part for the animal tissue. Okay, now whatever we are going to do after this one is a sort of detailing of each and every tissue. So first one is the epithelial tissue. We will go one by one. So it is the simplest tissue. जितने भी टिश्यू होते हैं उसमें सबसे सिंपल epithelial tissue होता है. इसके जो cells होते हैं they are very tightly packed to each other. ठीक है. इतना टाइट पैक होते हैं जैसे कि आपके फ्लोर पे टाइल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ में पैक हो जाते हैं. ठीक है. द सॉर्ट ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर. इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की कवरिंग बनाना. कवरिंग एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल कैविटी जैसे कि आपकी माउथ की लाइनिंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग, ये सारी चीजों की लाइनिंग्स बनाना. इट कीप्स डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. और क्या काम करता है? बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर उनको अलग अलग रखने का काम करता है. ठीक है. इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मीन्स द कैविटी विच इज देयर इन योर माउथ, दैट इज नोन एज अ बक्कल कैविटी. ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स बेसिकली मतलब होता है आपकी बॉडी में जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो सारी पाइपलाइंस जिनमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. एल्वियोलाई. एल्वियोलाई कहाँ पे होता है? आपके लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे लंग्स बनता है, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई बनाने में भी एपिथेलियल टिश्यू का काम.
किडनी के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी का यूनिट है वो, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इन अ किडनी एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी इज टू filtrate the blood and it has to take out the urine or the urea from the blood, ठीक है। नेक्स्ट, इट लाइज ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये जो सेल होते हैं, फ्लैट सेल है, सिंगल लेयर है, इसके नीचे एक लेयर होती है दैट इज नोन एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई। कौन सा प्रोटीन? दैट इज अ कोलेजन। तो ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू। लेट्स सी, so this is what is the type of epithelial tissues which we are going to study, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस में सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड में ऐसी ही मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। ये सिंपल क्यूबॉइडल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सर्कुलर, ये पाइपलाइंस में बनाने में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो ये जो कैटेगरी आपके सामने है दैट यू विल बी एबल टू लर्न वन बाय वन, ओके। First one, we are going to do the first one after this slide. This is a function of basically epithelial. तो epithelial क्या है? अपने आप में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू बेसिकली। इसकी वैरायटी बहुत सारी है, इसीलिए अभी हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन। तो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट इज गोइंग टू वर्क एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन कहाँ पे? स्किन बनाया तो स्किन ने प्रोटेक्शन किया आपकी जर्म एंट्री की, ठीक है। तो ये स्किन का प्रोटेक्शन हो गया। लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की लाइनिंग्स बनाना। अब कैसे? इसकी लाइनिंग माउथ की, एलिमेंट्री कैनाल जो आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्म में, विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एक्सटेंड अप टिल एनस। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की सारी लाइनिंग बनाने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। फिर सेकंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? when you have studied about the digestive system then absorption was there in the intestine, ठीक है। इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का, न्यूट्रिएंट का। तो वहां पे भी जो एब्जॉर्प्शन करने वाले जो सेल्स हैं वो किस चीज के बने हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट पार्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ पे करते हैं? किडनी में। क्या फिल्टर करते हैं? ब्लड से यूरिया को निकालते हैं। तो दैट विल बी देयर इनसाइड द किडनी। तो द सॉर्ट ऑफ सेल्स विच आर गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज अगेन मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। क्या करेंगे? वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेंगे ब्लड से। सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है? बेसिकली द सॉर्ट ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस लाइक हॉर्मोन्स, they are coming outside from their glands. So ये सिक्रीट करने वाले जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स इसको निकालते हैं, जो इसको रिलीज करते हैं, उनको भी एपिथेलियल टिश्यूज में ही डाला गया है। क्या करना है इनको? सिक्रीट सब्सटेंसेस। कौन से? जैसे स्वेट। स्वेट मतलब आपको जो स्वेटिंग आती है, पसीना आता है। सलाइवा, आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो भी सिक्रीट एपिथेलियल ने किया। स्वेटिंग भी एपिथेलियल सेल्स की वजह से हुई। एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। So this is what is the entire function of the epithelial cell. अब इनमें कौन सा specific function, कौन सा particular type of tissue करता है, that we will be doing in the coming slides. Let's start. Squamous epithelium, ये epithelial का सबसे पहला टाइप है, ठीक है। These tissue formed from one layer of squamous cells that line surfaces, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है इसमें क्या होता है? बेसिकली ये जो आप सेल देख रहे हो, दे आर दिस सिंगल लाइनिंग, सिंगल सरफेस है आपका। नीचे क्या है? ये जो आप ब्लू पे पिक्चर देख पा रहे हो, ब्लू पिक्चर, ये जो आपका नीचे का सेगमेंट है दैट इज बेसिकली द बेसमेंट। ये इसका बेसमेंट है। बेसमेंट में सेल्स नहीं होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होता है। एंड दिस इज द वन सेल इन विच यू आर एबल टू सी द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड इन बिटवीन this is the one cell, another this one is the next cell. So they are basically very tightly packed, so intercellular spaces is absent or you may consider very less is there, okay. So these tissue formed from one layer of squamous cells that line surface. Squamous cells are large. Squamous cells कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, थिन, पतले, फ्लैट एंड कंटेन अ राउंडेड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? राउंडेड न्यूक्लियस। And they are getting fit together with each other in a manner as if there's a tiles on the floor. So because of this sort of arrangement, it is also called the pavement epithelium. तो इसको pavement epithelium भी कहा जाता है।
ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट अकरेंस कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज में, वेन्स में, ठीक है, ऐसे में। कैपिलरीज बेसिकली जो होती है बहुत थिन वाली जो पाइपलाइन होती है, ब्लड वेसल होती है, उसे कैपिलरीज कहते हैं, जो सबसे थिनेस्ट मोस्ट होती है, ठीक है। एल्वियोलाई लंग को बनाने के लिए जो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर क्लबिंग करते हैं, दिस नोन एज एल्वियोलाई। ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई इज अ पार्ट ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसका क्या काम था? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड अदर टिश्यूज वेयर रैपिड डिफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। और ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। फंक्शन, इसका काम होता है बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सपोज दिस इज योर स्किन, तो स्किन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म से, ठीक है। एंड अदर फंक्शन लाइक केमिकल से प्रोटेक्ट करना और ड्राइंग से भी प्रोटेक्ट करना, सूखने से। एंड अदर फंक्शन फॉर दिस वन इज अ फिल्ट्रेशन इन द किडनी, तो ये फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम इन द किडनी। नेक्स्ट कैटेगरी इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। सी, जब हम स्क्वामस की बात करते हैं देन देयर इज अ सिंगल लेयर, एंड व्हेन the layers are arranged one over the other, so many layer, multiple layer formation is there, then it will become the stratified squamous. Stratified tissues contain cells of varying flatness on different layer, तो कई सारी layers हैं, उसके ऊपर cells की layer है, one layer another, so in this way they are arranged into the several layers, and there is a basement layer as it was there in a squamous epithelium also, ठीक है। तो इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में भी है, और सब में बेसमेंट लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी, ये भी प्रोटीन की बनी हुई है, इसके ऊपर ये सेल्स अरेंज किए गए हैं। दिस वाज इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड दिस इज द लोअर बेस लेयर। तो layers farthest away from the basement membrane tend to be the flattest। अगर हम फ्लैटनेस की बात करेंगे तो जो लेयर इस बेसमेंट से सबसे दूर होगी, यानी कि ये वाली, ये सबसे ज्यादा फ्लैट होगी। And the layer that touches the basement membrane however will contain either, और जो लेयर ये जो बेसमेंट को टच कर रही है, इस ब्लू लेयर को टच कर रही है, ये वाली पिंक लेयर, तो ये कैसी होगी? इट में भी स्क्वामस, इट में भी क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। क्यूब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कॉलमनर लाइक अ पिलर, ठीक है। द फ्लैटेंड सेल्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर, ये है आपकी सुपरफिशियल लेयर, कंटेन्स अ फाइब्रस प्रोटीन, इसमें एक फाइब्रस प्रोटीन रहता है, क्या नाम है उसका? कीरेटिन, and it becomes dead cell. Okay, this epithelium is basically waterproof, क्योंकि इसमें केराटिन होता है, that is the reason it is waterproof and it is highly resistant to the mechanical injury, मैकेनिकल इंजरी से भी ये बचाता है, ठीक है। So this was about the two epithelial tissues, and the remaining tissues we are going to continue in our next video. By that time, do this much. Thank you.